Hi friends, welcome to Bol Basanti podcast season 3. Today I have a friend, पार्थ जोशी, जो बहुत ही बड़े रीजन है मेरा एक डिसीजन लेने में कि मैं क्यों पहाड़ में शिफ्ट हो गई और बॉम्बे जैसे शहर में अपना काम सब छोड़ के आ गई. सो एनीबडी हु वांट्स मी टू कम बैक टू बॉम्बे एंड आई एम नॉट गोइंग टू कम टू बॉम्बे, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये इंसान है. तो प्लीज ब्लेम हिम नॉट मी. अब आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे या मैं तारीफ करूं? आई थिंक तारीफ करनी चाहिए क्योंकि आपने काफी बेइज्जती कर दी मेरी शुरुआत में. ये बोल दिया है कि मैं रीजन था आपको बॉम्बे नहीं शिफ्ट करने का. सो आई थिंक थोड़ी तारीफ वुड बी रियली नाइस. No, but that's a good thing, no? Parth is a filmmaker. He acts also. और जनाब देहरादून में रहते हैं. काफी हाइपर हैपनिंग सिटी है. पार्थ से मेरी मुलाकात मतलब वी गॉट टू नो ईच अदर 4 years बैक. कोविड के टाइम पे व्हेन आई वाज लिविंग इन माय पहाड़ों वाले घर पे इज व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हिम, बिकॉज उस टाइम पे ऑब्वियसली ज्यादा कोई कनेक्शन वो नहीं था एंड वो क्रिएटिव जूसेस के लिए आई वाज नॉट हैविंग एनीबडी अराउंड जिसको मैं मतलब जिससे मैं बात कर सकती थी कि हाँ somebody who I can connect to. I don't know, I had just a vibe with you that you had mentioned that you're a filmmaker and all, but then I said ki why don't you like live in Bombay? You shared a very beautiful short film of yours which you had written and directed with your niece Pihu. Yeah, that was very beautiful, and the way he had shot it, I was like, yeah, this guy is damn talented, he should be in Bombay. But he said something, he said कि यार मैं पहाड़ों से मुझे अलग ही प्यार है और मैं नहीं छोड़ के जा सकता, मैं यहीं पर हूँ. यू नो अक्सर लोग अपने टैलेंट या अपॉर्चुनिटीज के लिए बॉम्बे जैसे शहर में चले जाते हैं, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम अ क्रिएटिव फील्ड. बट दिस कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज pretty talented and still not wanting to and having an access to Bombay. ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में आपके contacts नहीं थे whatever, but you never used it to like go and live in Bombay. So that was very fascinating. The first striking thing about you was like यार ये कुछ मिला है जिसको who knows how to balance it out or whatever and is happy and content and still doing what he wants to do. So that somewhere stayed with me. Then हम बहुत सारी चीजों में connect किए. I think spiritual level पर we both are vegetarians. पंडित जी हैं. नहीं सिर्फ रिलीजन में कुछ लेना देना नहीं है. इट्स माय पर्सनल चॉइस आई गेस. बट हाँ मतलब No, as in non-veg वाला तो वो भी नहीं है रिलीजन का चॉइस. अच्छा. लाइक माय फैमिली डजंट ईट इट बट माय एक्सटेंडेड फैमिली लाइक दे ईट इट. तो उसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है. Oh, this I didn't know. So आप vegetarian by choice है. Yeah, I think I was vegan until I went to Colombia, जो मैं बाद में बताऊंगा आपको. But हाँ, then when I came back to India, I like since then I'm a vegetarian. So मतलब बचपन से vegetarian हूँ. But कुछ टाइम के लिए vegan था भी बीच में. Okay. Vegan. Yeah, vegan. So did it like go well? Like did it suit you or your body didn't respond well? Absolutely. भाई कॉलेज में जहाँ लोग ऐसे बेसिक्स के लिए वो करते हैं कि भाई मैगी मिल जाए. I used to have like almond milk, soy milk, and all the vegan food thanks to my Dadaji. He's not there with us anymore, but he pampered me so much. तो मतलब veganism मेरे लिए बहुत मुश्किल में था. But when I went to Colombia, there it was really difficult to be a vegan. Then I became vegetarian when I went there. Then I came back. So then since then I've been a vegetarian. But yeah. Which is not bad. Yeah, but I don't use leather. I don't use fur. I don't use any of those things. Oh, that's another common thing. Even I don't. I remember there was one point of time where I was during COVID. I was thinking of moving somewhere abroad. A friend in US who works with Apple TV. He was like, you know, you should shift here and blah blah. And I remember I said कि क्यों नहीं तुम वहाँ shift करते? Because you mentioned that you have studied outside, and you said कि मैं रह चुका हूँ, but I'm happy and content being in Dehradun, having my base, my family and everything. काम के लिए जाके मैं वापस आ सकता हूँ, but I'm not going to shift my base to any other country or any other city in India. Why did you make that decision? मेरे से जब कोई पूछता है कि तुम देहरादून क्यों नहीं छोड़ते, तो मैं उसे बोलता हूँ कि देखो मेरी आत्मा यहीं रहती है, मेरा शरीर ट्रैवल करता है हर जगह. तो when I finished my college and schooling from Dehradun, I went to Colombia for a year and a half. This was back in 2015-16. And what did you study? I studied communication, mass communication. And then when I went to Colombia, तो जैसे उस टाइम ये जवानी दीवानी आई थी and रणबीर कपूर रहता है ना उसमें. Exactly वही काम था मेरा. I used to go to villages, interview, and ऐसी लैंग्वेज में जो मुझे आती भी नहीं थी. मतलब I didn't know Spanish at all. तो I did that for a year and a half. And then मेरे को जाना 6 महीने के लिए था, बट उन्होंने बोला कि नहीं रुक जाओ, हमें आपका काम पसंद आया. So I stayed there for another year. I came back. Then I had 2 options: either to shift to Bombay or start something of my own in Dehradun. And then a group of friends came together and बोला कि हम कुछ शुरू करते हैं, यहीं पे काम करते हैं. And I remember the first thing we shot was a Mata Ka Jagran. And since then, I think it was the blessing of that Jagran, I guess. I think. माता ने बोला बेटा. Yeah, till COVID के end तक, like COVID के बाद तक भी 2021 तक, I worked with the same set of people. We established a production house. Somebody came on board. They invested in us. They saw that they're doing really good work, so we can take you forward. And then the base had to be shifted to Gurgaon.
I really like the city, but just for work. I would not be shifting to Gurgaon because I worked there in my college days. I was an intern at Fever. जब जाकिर खान जिसको सब जानते हैं 104 Fever. सो जाकिर खान जो जाकिर सर थे वो हमारे शाम वाले शो के प्रोड्यूसर थे. So, it was back in 2014, I guess. तो मैं दिल्ली रहा था 3-4 महीने के लिए. And I really like the city, but again, just for work, nothing more. And when I keep going to Gurgaon or Delhi these days, people who are not from there, every time I listen that they really miss their hometown, really miss going home. तो मुझे लगा कि अगर इतना ही मिसिंग करना है तो बेस बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता ना गुड़गांव में. एंड देन गोइंग टू बॉम्बे, लाइक I just finished like one of the films I was an associate director for. I stayed in Bombay for another for 5 and a half months. You were there for quite a long time. Yeah, 5 and a half. इतने टाइम तक जब तक मैं बॉम्बे में थी इस जनाब को मैं बुलाती रहेगी आजा 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 नहीं. And I actually thought that you might just stay कि तुम्हें 4-5 महीने में होगा and your sister is there. You never after living for 5 months because मैं तुम्हारे स्टोरी वो सब देखती रहती थी. You were having a ball of a time. Obviously work भी था. But then thought नहीं आया कि अब रह जाता हूँ, दी भी है यहाँ पर. Sometimes I have this thought in my mind that when I used to be in Bombay, everything is so accessible in Bombay. You have an idea, you create, you write it or you ideate it, and you have the right person to pitch it to. देहरादून में सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है कि आप यहाँ पे चीजें क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसका एक्सेस the universe is in Bombay. So sometimes I have a thought in my head कि बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं. बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं कुछ कॉन्क्रीट नहीं मेरे हाथ में, like till the time I'm not having something concrete to shift to Bombay, I will not. जैसे right now I'm directing 2 plays with 2 different schools. I am directing Inside Out and I'm directing Zangura. We are recreating Zangura basically for the school. So मेरा जो एक्टिंग का जो लव है, मुझे लगता है कि वो बेसलाइन हमेशा वैसी रहा है. मतलब पिछले 7-8 साल में मैंने प्रोडक्शन किया, डायरेक्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन वो जो एक्टिंग का जो कीड़ा है वो मुझे लगता है कि वो देहरादून में पूरा नहीं हो सकता. सिर्फ उसकी वजह से आई वांट टू रियली गो बैक टू बॉम्बे फॉर सम टाइम, वर्क विद डिफरेंट पीपल एंड देन सी हाउ इट गोस. एंड हाँ, मतलब मैं किसी से बात करता हूँ, किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर से या किसी भी डायरेक्टर से, बोलता है कि भाई तुझे ऐड तो ऐसे मिल जाएंगे, तेरे बाल इतने बढ़िया हैं. लोगों को लगता है I know this is a very typical thing. इसलिए कि कर्ली हेयर वालों को तो लोग ढूंढते रहते हैं कि बाल तो ऐसे मिल, मतलब तेरे बाल इतने बढ़िया हैं. It's very peculiar look, no, you don't get it. And then if it's your hair and then you have a screen presence and good looking इंसान है तो फिर हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा बोल लेता है, साफ सुथरा आवाज भी है and all of that. So yeah, I am pretty sure that this is, but वो ऐड तक ही वो करेंगे. हाँ, मतलब ऐड तक ही पुश कर रहे हैं. बोलते कि ऐड तो आराम से मिल जाएंगे, बाकी तो अपनी जर्नी है. हाँ, मतलब ऑब्वियसली सबकी अपनी जर्नी है, कोई किसी को क्या कितना ही प्लेटफॉर्म में सब करके दे सकता है. सो या मतलब, बट कमिंग बैक टू द फैक्ट जो आपने क्वेश्चन पूछा, एनी डे बॉम्बे ओवर दिल्ली. लाइक आई रियली लाइक दिल्ली, लेकिन फिर भी काम और जो एक्सेसिबिलिटी का यूनिवर्स है ना, वो बॉम्बे में मुझे ज्यादा समझ में आता है दिल्ली. सो या आई थिंक मैं दिल्ली वाले लोगों को वैसे डिस नहीं कर रहा हूँ, बट it's just the place which I'm talking about. तो हाँ, मतलब Bombay is something which I would want to go and live for some time. But again, जैसे मैंने बोला, मेरी सिर्फ आत्मा, मतलब मेरी आत्मा यहाँ फिक्स्ड है, उसके अलावा बॉडी ट्रैवल करती रहेगी यहाँ. पहाड़ तो मुझे हमेशा से पता था, that was my retirement plan, to be very honest, कि रहूंगी तो मैं पहाड़ में ही. But I think वो फीलिंग मुझे ऐसा है, लेकिन मैंने कहा कि why am I waiting for that, कि इतने सालों के बाद मुझे ये पता है कि मेरी प्राइमरी नीड लाइफ में हमेशा रही है कि आई वांट माय पीस एंड हैप्पीनेस बिफोर एनीथिंग एल्स. बिकॉज अगर वो है मेरे पास तो मैं जो करना चाहती हूँ, जहां करना चाहती हूँ, अपने आप थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. एंड देन आई डोंट नो, आई थिंक दैट वाज जस्ट अ क्रेविंग दैट माय सोल वाज कि आई वांट दैट हैप्पीनेस एंड पीस. एंड वो मुझे हमेशा पहाड़ों में और नेचर के बीच में ही मिलती है. तो आप बॉम्बे शिफ्ट होंगे? पता नहीं, शायद हो सकता हूँ, हो जाऊं. एंड आई थिंक माय वर्क विल टेक मी टू बॉम्बे. आई विल बी कमिंग इन एंड आउट ऑफ बॉम्बे. या मतलब मुझे लगता है कि बॉम्बे, and I think देहरादून से काफी accessibility है. It's just one flight away. Yeah, it's just one flight. अब तो direct flight से पहले तो था कि देहरादून to Delhi to Bombay वाला था. अब तो इतना. How is the frequency from देहरादून to Bombay? I think 3-4 flights चलती हैं. रोज? Yeah. Wow. Every day. मतलब काफी सारा टैलेंट वहाँ जा रहा है इसका मतलब. अरे देहरादून से बहुत सारे लोग हैं इस सिटी में. I think पहाड़ी people are just blessed with some talented. हाँ, कुछ तो ऐसा लगता है कि कुछ तो है देहरादून की मिट्टी में. मतलब इतने सारे लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं. मोस्ट ऑफ द टैलेंटेड पीपल इन उत्तराखंड, जैसे मैं स्पॉट करना चाह रही थी फॉर माय शॉर्ट फिल्म्स टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स, मुझे सब देहरादून में ही मिलते हैं. सब देहरादून में होते हैं. एंड ADs, directors, actors, singers, musicians, everybody is from Dehradun or some relation to Dehradun. And आप लंडौर जाओ, which is like मसूरी से ऊपर,
विक्टर बनर्जी ने तो इतना सुंदर घर बना लिया वहाँ पे. यू विल फाइंड लाइक आई वाज वॉकिंग वन डे एंड विशाल भारद्वाज अपनी पूरी फैमिली के साथ वॉक कर रहे हैं लंडौर पे. एंड Manav Kaul, everybody you will find that they are, you know, they love Lindor, they love the energy around this, and of course Raghav को कौन नहीं जानता है. I've known him since like a long time now, and the thing is कि उसका पॉडकास्ट में सुन रहा था अभी कुछ टाइम पहले, तो बोलता है कि भाई मेरे को जैसे ही समय मिलता है ना एक दिन he rushes back to home, and that is so true. Not just उसका I think वो रहता है वो break time में he comes back, he travels in the mountains because again how you said energy rejuvenate यहीं आके होगी. मतलब exactly. अगर अभी शहर से नहीं हो तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या सिस्टम कैसे वर्क करता है. I don't think so because जब मैं बॉम्बे में भी थी ना, जब से मेरा घर पहाड़ों में था, मेरा बॉम्बे में भी रह के एवरी ईयर जून जुलाई अगस्त के टाइम पे आई विल कम, आई स्टे, नॉट ओनली रिजुविनेट. आई थिंक मेरे लिए तो ऐसा था कि मुझे इंसानियत है, एग्जिस्ट करती है अभी भी, वो फीलिंग मेरे की वापस रीइंस्टेट होती थी कि अच्छे लोग होते हैं, दुनिया में अच्छाई है. बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि बॉम्बे बुरा है, बट यस इट्स कम समवेयर मटेरियलिस्टिक है वो वर्ल्ड. नॉट जस्ट बॉम्बे, आई थिंक सिटीज आर जस्ट मटेरियलिस्टिक, दैट्स हाउ दे रन. मुझे एक चीज जाननी है, हाउ डिड यू लैंड अप और डिसाइडेड दैट दिस इज द फील्ड दैट यू वांट टू वर्क इन? क्या उस टाइम भी देहरादून में वो एनवायरनमेंट था दैट समवेयर इंस्पायर्ड यू, और समवेयर यू नो आपके दिमाग में हुआ कि you want to do films or something related to films? 2010 में a good friend of mine said that कि तू थिएटर करना चाहता है. मैं बोला भाई जिस स्कूल से मैं आता हूँ it's like one of the most reputed schools of Brightlands. तो बहुत सारे ब्राइटलैंडर्स अगर ये देख रहे होंगे तो they would relate to me that वहाँ पे co-curricular activities के नाम पे कुछ नहीं होता था. तो क्योंकि it was a very strict academic sort of a school. तो आई थिंक इतने टाइम तक कीड़ा था वो दबारा एंड देन 11th में आई स्टम्बल्ड अपॉन थिएटर एंड माय टीचर लाइक माय फर्स्ट टीचर आलोक उल्फत, आई जस्ट कनेक्टेड टू हिम राइट अवे. आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर व्हेन आई वाज यू नो मैं 11th में था तब. 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज. तो थिएटर लाइक एज एन एक्टर? या एज एन एक्टर. एंड देन दून यूनिवर्सिटी जिसमें मैंने कॉलेज किया है, सो वहाँ पे थिएटर सोसाइटी नाम का कुछ था ही नहीं बिकॉज it was a very small अब तो खैर यूनिवर्सिटी has become like really huge, but तब यूनिवर्सिटी बहुत ऐसे छोटे स्केल पे काम करती थी. So there was nothing theater नाम का कुछ था नहीं. So we started something you know in theater. As in within college आपने society ऐसे okay. And then we won like you know the state championship जो भी होती है. I wrote a play with a friend called Ek Thi Tiri. It was about the Tiri Dam जो डूब रहा था, and it was about the people who had houses in that you know space. तो कैसे उनको कैसा फील हुआ कि मतलब कल को आप जहाँ बैठे हो वो डूब जाए, आप कितने साल की लेगेसी, इतने साल के मेमोरीज डूब जाए. सो इट वाज अ प्ले अबाउट दैट एंड वी वन. तो मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग भाई, इसमें स्टोरी टेलिंग है, इसमें आप you know you can connect with the audience, you can make them laugh, cry, whatever. And then from there I stumbled upon you know my professional internship which I did in Colombia as I was talking about earlier. And then I thought कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब मजा आ गया काम करके. And I think जो आप मतलब हमारी जो भी बिहाइंड द कैमरा बात हो रही थी, आप मेरे से पूछा कि किस चीज के लिए तुम यू नो पैशनेट हो या कैसे वो कीड़ा रह गया. मुझे ऐसा लगता है कि 3 वर्टिकल्स होते हैं आपकी लाइफ में जो आप काम अगर करते हो और अगर ये तीनों सॉर्टेड है तो बेस्ट हो जाता है सीन. फर्स्ट इज द क्रिएटिव थिंग, सेकंड इज द मनी थिंग, एंड थर्ड इज बेसिकली योर सोल या फिर आपके इमोशन अगर सही जगह पे हो तो मेरे लिए अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ, आई एम अर्निंग फ्रॉम इट, ठीक है, आई एम क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, and obviously I'm storytelling. So these 3 verticals are always fulfilled. And अगर आप कोई फिल्म बना रहे हो किसी सब्जेक्ट के ऊपर, फिर भी ये तीनों चीजें से फुलफिल होती हैं. Right now I am also working on my e-commerce brand जो भी आने वाले टाइम में कुछ आ जाएगा. I'm looking forward for that. Yeah, तो उसमें मैं तीनों वर्टिकल करना चाहता हूँ फिक्स. Like I would want to have like a CSR implanted before I even start my brand. Like CSR, like yeah, corporate social responsibility. Okay. So like when the brand is launched, generally क्या होता है कि brand launch होती है, उसके कुछ टाइम बाद जब वो पैसे कमाना शुरू करती है तब वो CSR करती है. Because मेरा जो social एक्टिविस्ट का जो कीड़ा है जो स्कूल से है, इसके बारे में हमने बात नहीं करी, हम करेंगे. वो मुझे लगता है कि दैट गिव्स मी द फुलफिलमेंट ऑफ यू नो वर्किंग एंड गेटिंग समथिंग और गिविंग समथिंग बैक. तो जब मैंने थिएटर शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि यार हमारी जो कंज्यूमर टाइप की सोसाइटी है जिसमें हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो डेटा हो कुछ भी हो, हम सिर्फ कंज्यूम ही कर रहे हैं. हाउ टू लाइक सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट टेक आउट सम टाइम टू गिव इट बैक. तो 11th में अगेन सेम टाइम मुझे लगता है कि मेरा 11th बहुत crucial time था जब मैं क्लास 11th में था. So I found two deciding things. Moment of your life. So I found 3 things basically: theater, meditation, and the social activist which I was.
So again, a group of friends came together and बोला कि यार ना बहुत कूड़ा बढ़ गया है and we need to do something about it. So we started to do some cleanup drives ऐसे randomly and then it became really big. Like 500 लोग आने लगे हमारी drives में. The whole school used to be there. And then we stumbled upon a river called Tons जो एक मंदिर के अंदर से होती हुई बहती थी. So टपकेश्वर करके एक मंदिर है जिसके अंदर से नदी बहती जाती थी. And I went there with my father one day and I was like कि भाई ये तो मतलब this is not a नदी. यहाँ पे लोग कैसे इसका पानी ग्रहण करते हैं. This is like almost sewage. We talked to the पंडित. मैंने बोला कि आप पंडित जी आप टेंशन मत लो हम लोग आएंगे एटलीस्ट 6 महीना हम हर संडे को क्लीन अप करेंगे एंड व्हेनेवर यू विल गो देयर नेक्स्ट यू विल नॉट रियली बिलीव कि ये वो था जो तुमने देखा था एंड आई थिंक दैट वाज द पॉइंट वेयर आई यूज्ड टू बिलीव कि भाई दिस इज समथिंग व्हिच फुलफिल्स माय सोल व्हेन आई एम डूइंग दैट and that giving back to the society and then we started doing plantation drives then we started doing and then like college chala gaya then मैं Colombia chala gaya but that happened even when I was not there the other people took you made sure ki like the rest of your team your friends are carrying it forward and they are doing really great then when I came back COVID जब हुआ I was actually coming to the COVID thing that COVID में Better India had covered your thing and he didn't tell. Were you on Instagram at that point of time? He was not even on Instagram. मतलब बहुत कोक्स करके इसको I think लोगों ने बोला कि you should come and for a very long time and even when you got on it इसने private कर रखा है किसी को बताया ही नहीं कि मैं Instagram पे आ गया हूँ. So the Better India करके there's this platform and they really find good stories like just to show the positive sides of India. This guy was featured on it but there's no tagging because सर जी जनाब थे ही नहीं उस टाइम पर मैं 2017 से 23 दिवाली तक इंस्टाग्राम पे नहीं था मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया का क्या मतलब क्यों मेरे को लगता था कि मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं की क्या है बट आई थिंक जब मैं वापस आया देन पीपल टोल्ड मी कि भाई नहीं होना चाहिए जस्ट टू बी देयर एंड whatever you're doing put it out there anyway coming back to the COVID thing yeah तो COVID में क्या हुआ कि हम ना बैडमिंटन खेलने जाते थे and it was like strict COVID lockdown. Grave, the serious one which came in 2021. Yeah, और हम बैडमिंटन खेलने जाते थे थोड़ा दूर अपने घर से and मुझे लगता था कि हाँ मतलब लोग काम कर रहे हैं everything is working मैं क्या ही कर लूंगा मतलब एक इंसान क्या ही कुछ कर सकता है and then हम सिर्फ बैडमिंटन खेलने जाते थे and the police was like the पुलिस का पूरा वैन था ना वो ऐसे चल रहा था और लोगों को पिक कर रहा था रोड से जो लोग लॉकडाउन ब्रेक कर रहे हैं एंड दे सॉ अस मेरा छोटा भाई था उन्होंने हमें उठाया वैन में डाला और स्टेशन ले गए एंड देन व्हेन आई वाज वो एक ड्राइव थी 2 किलोमीटर की फ्रॉम द प्लेस वेयर वी वर टू द स्टेशन एंड आई स्टार्टेड हैविंग सो मेनी थॉट्स इन माय हेड कि भाई तू क्या कर रहा है यार तू बैडमिंटन खेलने जा रहा है और तेरे को पुलिस ने उठा लिया एंड थैंक्स टू द फैमिली बैकग्राउंड व्हिच आई हैव it was not difficult for me to get out from where I was in that difficult situation but when I came back to my house I was like bhai nahi this is not something I really like doing so I think COVID tab lockdown shuru hi hua tha and cases aane shuru hue the वापस मतलब it was getting big again and I thought कि नहीं भाई ये तो नहीं करना है and then I posted a story on my Instagram Instagram पे था नहीं तब I posted a story on my WhatsApp कि अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो चाहे वो दवाई है या कुछ भी है I'm there as a runner you message me I'm gonna pick it and give it to you because if you're positive you cannot go out of your house and that was just a small message मुझे कॉल आने शुरू हो गए कि मेरा खाना आना है यहाँ से या मेरी दवाई आनी है यहाँ से then my friend used to deliver free food to all the COVID patients तो मैंने बोला भाई तू क्या कर रहा है मैं तेरे साथ खाना बनाने और बांटने में हेल्प करता हूँ first that happened then my second friend said कि मेरे को ना कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे हैं बॉम्बे से would you like to help and distribute it and that was the time when I realized कि भाई this is what I wanted I used to wake up 6:30 in the morning पहले हम वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखते थे चेक करते थे कि कहाँ किसको जाने हैं we used to do that आफ्टरनून में खाना डिलीवर करता था एंड शाम को मैं पर्सनल हेल्प करता था लोगों की क्या होता है And then when all of this started happening, another friend of mine said कि भाई I have a person who is in Adobe basically and she wants to donate some amount for you guys to because तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो and she said कि let's start something off you just like take the money and start doing things then Doon volunteers happened me and my friend we thought कि कुछ interesting चीज ऐसी करते हैं कि जिसमें हम volunteer group को एक basically base बनाए and again we posted about it and people started joining in तो हमने शुरुआत में क्या किया हमने पर्सनल डोनेशंस लेनी शुरू करी कि आप हमारे इस अकाउंट में पैसे भेजो व्हाटएवर वी गोना स्पेंड वी गोना टेल यू दैट इतना खर्चा हुआ है हमने यहाँ ये किया है एंड मैन पीपल स्टार्टेड जॉइनिंग इन लेफ्ट राइट एंड सेंटर हमने कुछ चीजें क्रैक कर ली थी कि बेसिकली 3 तरह की किट्स जाएंगी फर्स्ट विल गो टू जो पेशेंट्स हैं बेसिकली जो कोविड पेशेंट्स हैं तो जो हमारे साथ एक डॉक्टर थे हु यूज्ड टू क्रिएट दैट किट फॉर अस तो उन पेशेंट्स को जाती थी सेकंड जाती थी जो ऑन फील्ड वर्कर्स हैं बेसिकली अगर आप आशा वर्कर हैं या आप किसी और एसएस पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको हो सकता है कोविड हो जाए जिसमें आपके ग्लव्स रहेंगे मास्क रहेंगे व्हाटएवर एंड थर्ड वो किट जाती थी कि फॉर एग्जांपल मैं कोविड
मेरे को हो चुका है। कोविड होने के तुरंत बाद की जो टाइम होता है ना, मतलब यू नीड मल्टीविटामिन, यू नीड विटामिन सी, तो एक वो किट जाती थी। एंड देन आई सॉ दैट देहरादून के आसपास तो बहुत किट, मतलब एवरीबॉडी इज गेटिंग व्हाट दे नीड, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पहाड़ों में अगर कोविड हो गया तो ये कैसे सॉल्व होगा? एक्सेस ही नहीं है। And then we did the first drive, नीलकंठ करके जगह है ऋषिकेश थोड़ा आगे, we did the drive there and people really loved it। उन्होंने बोला कि भाई हमें यही तो चाहिए था। Then we went to उत्तरकाशी, हमने वहां पे किया। Then we went to चमोली, हमने वहां पे किया। Then we went to अल्मोड़ा, हमने वहां पे किया। And then we realized कि भाई लोगों के साथ करके कुछ नहीं होगा, जो इसका सेंटर है ना, which is a PHC or an additional PHC, that is the place which needs to work upon, like which needs to be worked upon। तो अल्मोड़ा करके जो जगह है, उससे थोड़ा दूर एक गांव है जहाँ पे हमने एक PHC, हमने बोला कि हम उस PHC को विजिट किया। तो आई डोंट नो हाउ द प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज, बट उसका PHC रोड से अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे था एंड ऑलरेडी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आपके 15-20 किलोमीटर के रेडियस में, खलदुआ करके जगह है उसका नाम, 15-20 किलोमीटर के रेडियस में एक PHC, एडिशनल PHC होता है। तो अगर आपको खांसी की दवाई भी लेनी हो ना, तो आपको चल के आना पड़ेगा वहां तक। तो वी रियलाइज कि जब हमने डॉक्टर से बात की तो उसने बोला कि बेसिक मेडिसिन ही नहीं होती PHC में, सब में नहीं, मतलब जो बहुत दूर दुर्गम, बेसिकली दुर्गम बोलते हैं। तो हमने बोला कि बहुत बढ़िया है, आई थिंक नाउ वी हैव फाउंड व्हाट वी नीड टू डू। सो वी अडॉप्टेड दैट PHC फॉर एन ईयर। वी सेड कि जो भी आपको जो भी मटेरियल चाहिए, दवाई चाहिए, वील गिव दैट एंड वील सी कि आपका पेशेंट लोड इंक्रीज हुआ या पेशेंट लोड वैसा ही रहा या डिक्रीज हुआ। एंड आई थिंक 6 महीने में वी स्टार्टेड टू सी दैट द पेशेंट लोड लाइक इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हफ्ते में 7 लोग आते हैं तो हफ्ते में 50 लोग आने लगे उस PHC में, बिकॉज दवाइयां रहती थी। तो हम एक बार गए वहां पे, तो हमको डॉक्टर ने बताया कि एक खांसी की शीशी लेने के लिए दादाजी 7-7 किलोमीटर चल के आते थे। स्नेक वेनम, स्नेक बाइट, फ्रैक्चर्ड, ये सब कुछ बेसिक चीजें नहीं होती थी वहां पे। सो जब 1 साल हमने PHC अडॉप्ट किया, तो वी रियलाइज कि भाई दिस इज व्हाट द बेसिक हेल्थ केयर नीड्स। एंड आफ्टर एन ईयर जब हम आउट हुए इस PHC से, तो जो डॉक्टर थी हिमानी करके, तो डॉक्टर ने बोला कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने विजिट करवाई बाकी PHCs की हमारे PHC को दिखाने के लिए कि देखो ये एक मॉडल PHC है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हमें रियलाइज हो कि अगर ये फिक्स हो जाए ना हेल्थ केयर में, तो क्योंकि पहाड़ में क्या 3 प्रॉब्लम्स है, एक हेल्थ, एक एजुकेशन और एक जॉब्स। ठीक है, इंसान इन तीनों वजह से नीचे आता है। पलायन जो बेसिकली बोलते हैं वो इन तीनों वजह से होता है। आपके पास डॉक्टर नहीं है, आप ऋषिकेश देहरादून आओगे। आपके पास पढ़ाई नहीं है, आप ऋषिकेश देहरादून आओगे। आपके पास जॉब्स नहीं है, तो आप फिर कहीं तक भी जा सकते हो। वो तो शहरों में जब एग्जैक्टली तो लोग जॉब्स के ऊपर बहुत काम करते हैं कि भाई पहाड़ों में वापस जाके आप काम कर रहे हो, आप एजुकेशन पे भी इंसान काम कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स अ बेसिक नेसेसिटी। या मतलब अगर आप सोचो ना कि आपको खांसी की दवाई खानी है, तो वो क्या करते थे वहां पे कि बच्चों की खांसी की दवाई और बड़ों की खांसी की दवाई में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। तो वो क्या करते थे कि जो बड़ों की खांसी की दवाई है और जो स्पेशली जो कैप्सूल से पिल्स है, वो पीसते थे उसे और पुड़िया में पैक करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पूरी दवाई लेनी है, एक पूरी गोली लेनी है, स्ट्रेंथ को कम करने के लिए 5 mg है तो हाफ करके पुड़िया पैक करते थे और तब देते थे बच्चों को, क्योंकि उनके पास होता नहीं था वो मटेरियल देने के लिए। तो देन वी रियलाइज कि भाई और हर PHC से, मतलब खलदुआ नहीं, हमने और भी PHCs में काम किया, चमोली में PHC वहां पे काम किया, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही कफ मेडिसिन फॉर किड्स होती थी। हमें लगता था कि सबसे सेम जगह सेम रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है। तो हमें रियलाइज हुआ कि क्योंकि पहाड़ों में जैसे एक कोविड जो कफ की बॉटल की जो शीशी है, दैट इज एक्सपेंसिव। मतलब अगर आप मान लो 120 रुपए की एक दवाई, तो एक्सपेंसिव है पहाड़ों के हिसाब से। और एक 10 रुपए का पत्ता, डिस्प्रिन का 15 रुपए का पत्ता इज इजी टू गेट। तो सारी जगह पे सबसे पहले कफ सिरप खत्म होती थी। और पहाड़ों में क्योंकि आप रहते हो, आपको खांसी बहुत इम्यून हो आप वेदर चेंज के, तो खांसी ज्यादा होती थी। तो वी रियलाइज कि भाई दिस इज, अगर हेल्थ केयर सॉर्ट हो गया ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वी वर्कड इन दैट स्पेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन व्हेन सरकार वापस अपना सिस्टम चालू हो गया, तो then we said कि now we don't need it, we stepped out and but still like Dune Volunteer is there. We are actively looking for people who would want to help in the healthcare sector of Uttarakhand. So yeah, तो वो जो एक मेरी गलती थी जिसमें मैं बैडमिंटन खेलने जाता था स्कूटी से, when that realization happened, I think तब मुझे रियलाइज हुआ कि रियलाइजेशन कोई ऐसी एकदम आप पहाड़ में कहीं बैठे हो और आपको चमत्कार दिमाग में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक इंस्टेंस होते हैं, स्मॉल इंस्टेंस जो होते हैं, वो आपको ट्रिगर कर देते हैं। वाओ, आई थिंक ये कीड़ा मेरे पापा से ही आया है, बिकॉज़ माय फादर आल्सो रन्स सोसाइटी है गोकुलधाम करके, इन विच ही हैज गौशाला, जिसमें सिर्फ चोटिल गाय जिसको डेयरी से निकाल दिया हो, जो बेसिकली बछड़ा जिसको nobody is taking care of, so he's doing this for like 15 years now. तो वो जो गौशाला है वो देहरादून में ही है, and every Friday, Saturday and sometimes like Sunday, Papa stays there, goes there, takes care of all of those cows, and मुझे लगता है कि शायद वो इंस्टिल वहीं से हो गया था। हर कोई इसी होड़ में कि पैसा
Now like see like you also started, ऐसा तो नहीं था कि मतलब you had lot of money and everything, it's just that वो एक intent था. वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम एक इंसान क्या कर सकता है, मतलब मुझे वो ना उस लाइन से प्रॉब्लम है. हाँ. एक चना क्या भाड़ फोड़ सकता है वाला जो कंसेप्ट आइडिया है कि यार आप you see so many influencers coming up, you know, it's just a single person ना, पीछे जो भी टीम होगी लेकिन है तो एक इंसान, इनिशिएटिव तो उसी का, बाद में फिर होता है. तो मुझे लगता है कि इनिशिएटिव अगर नहीं है तो फिर you know nothing is created after that. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार भाई सोशल हम तब करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा, या सोशल हम तब करेंगे जब हमारे पास एक पूल ऑफ रिसोर्सेज होंगे. नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते आप, वो कभी भी नहीं होगा. मतलब I genuinely feel things fall in place. Like you started off अकेले, एक WhatsApp खाली डाला, and you saw कि there's so much of goodness in the world कि चलो ठीक है हम शायद फिजिकली प्रेजेंट होके आपके साथ नहीं कर सकते, बट हम ये आपको दे सकते, प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड यू वर गिवन, एंड सो इन ग्रेजुअली इट ओपनड लॉट ऑफ अदर एवेन्यूज फॉर यू कि यू गॉट टू नो पीएचसी के बारे में. यू लाइक हाँ, एक साल अडॉप्ट करना एक पीएचसी को एंड टेकिंग केयर ऑफ वट एवर स्मॉल टाउन और वट एवर उनकी मेडिसिन एंड ऑल, दैट्स ऑल्सो नॉट लाइक कि फ्री में आ रही है. बट आप सोचो ना कि उस इनिशिएटिव से approximately 3.5 lakh people were affected because हमने 3 अलग, and government had this example to show other PHCs. हमने 3 अलग डिस्ट्रिक्ट्स में किया, you know, हमने approximately 60 प्लस विलेजेस में दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करी. हमने अप्रोक्सीमेटली 10 प्लस पीएचसीज में यू नो सेटअप्स भेजे. और सेटअप एज बेसिक एज चेयर नहीं है, टेबल नहीं है, दवाई किसमें दोगे आप? तो और इंफ्रास्ट्रक्चर सच में बहुत हिला हुआ था कोविड से पहले. कोविड के बाद उनको रियलाइज हुआ कि भाई अगर सच में कुछ हो गया पहाड़ में तो कैसे सॉल्व होगा. मैं वो 3 वर्टिकल्स के बारे में बात कर रहा था ना, कि अगर आपका वर्क सॉर्टेड है, अगर आपका क्रिएटिव थिंग सॉर्टेड है, और अगर आपका ये सोशल सॉर्टेड है ना, आप कभी भी एम्प्टी फील नहीं करोगे. कोई भी, मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, डजंट मैटर. If you had to write your own autobiography and it's like I'm reading it and I don't know who's Parth Joshi, so how would you define yourself? Okay, काफी डिफिकल्ट है ये बताना. I think I don't know, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज होती है, जैसे there's a difference between childish and childlike. Yeah. So I would call myself childlike person. Yeah. ये जो word है childlike, mixed with you know working in the performing arts space, giving something back and then finding something within. ये जो 3-4 aspects है life के, मतलब मुझे लगता है यही हूँ मैं. इसके अलावा तो I don't see myself you know as somebody different. और क्योंकि मैं हमेशा घर वालों के आसपास रहा हूँ, मैं अपनी बहन से इतना क्लोज हूँ, एंड थैंक्स टू लाइक मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो मुझे हमेशा भैया भाई वाली फील में रखता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक द एनर्जी विच आई गेट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस एनर्जी क्रिएट्स हु आई एम. तो मुझे लगता है कि इसमें से ही कुछ होगा. मतलब आई डोंट हैव एन आंसर, पर्टिकुलर आंसर टू दिस कि हु इज पार्थ जोशी. आई कैन नॉट डिफाइन इट इन लाइक वर्ड्स. और अगर मैं कहूँ कि अगर चलो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, गिव मी 5 words that you would define, adjectives which you feel are something that शायद collectively will tell who Parth is. Childlike, creative बोल सकते हैं उसको in that space, extremely social, extrovert, spiritual for sure, वरना उसके बिना तो ये जर्नी शुरू नहीं हो सकती I guess. And 5th would be aiming to get somewhere, reach somewhere. Driven basically. Let's put it driven. So yeah. हम ना अक्सर हम जब बोलते हैं who's your inspiration, who's your idol, तो हम बहुत कोई बड़े-बड़े नाम ढूंढ रहे होते हैं. But I have always believed that you know you don't have to go too far to find inspiration or to learn things. Only if you are aware and open to listen and observe people around you. So जैसे अभी you said like about your social work या कोविड के टाइम में जो किया, अकेले शुरू हुए और फिर एक you know पूरा एक कारवा बन गया. तो दिस इज व्हाट इट इज कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. आपकी इंस्पिरेशंस, लर्निंग्स जो भी है ना, आप लाइफ जो आपको सिखा सकते हैं, लाइफ में आसपास आपके जो लोग हैं जो आपको सिखा सकते हैं, वो शायद किताब है या फिर ये जो बड़े बड़े लोग जिनके आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं शायद आपको सिखा सकते हैं. बट अगर आपके पास एग्जाम्पल सामने है जिंदा, जिससे आप पर्सनली वो कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट दैट वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वेज. All that you need is you just need to have that eye to see what you can take from them and learn and become a better human being. Perfect. Thank you. चलो, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much पार्थ. और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक और नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए stay happy, stay kind and stay grateful.